لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب اور 43ویں آیت سے ہم دیکھیں گے۔ متی 5واں باب اور اس کی 43ویں آیت سے لکھا ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت کر، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے جی، بیٹھیے۔ پھر نعرہ لگائیں گے، ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا، تعریف ہو ان سانسوں کے لیے خدا کا شکر کہ وہ ہمیں اپنے حضور اپنے قدموں میں لے آیا۔ پریز دی لارڈ۔ آج جو مضمون آپ کے ساتھ بانٹنے والا خدا کے کلام کی باتوں کا، وہ ہے اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ یہ بولیں گے جی، کیا ہے جی؟ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ یہ روزمرہ ڈیلی بیسس پر میرے اور آپ کے استعمال میں آنے والی بات ہے۔ بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، بہت ساری اچھی عادات ہے ہماری، لیکن جب دشمن کو معاف کرنے اور دشمن سے محبت رکھنے کی بات آتی ہے، شاید ہم ایسا نہیں کر پاتے۔ ہم سے ایسا ہوتا نہیں، فطرتاً ہم ایسا نہیں کر پاتے، کیونکہ انسانی فطرت جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے ہے۔ انسان کے اندر جو جذبات ہیں، وہ جذبہ دشمنی کو ابھارتے ہیں، اور ہمارے لیے دوسروں کو معاف کرنا مشکل ہے بنسبت دوسروں سے بدلہ لینا۔ لیکن یسوع مسیح میرا اور آپ کا چرواہا ہے۔ یسوع مسیح ہمارا خداوند ہے، اور جو کچھ یسوع کی زبان مبارکہ سے میرے اور آپ کے لیے ادا ہو گیا، حکم جاری ہو گیا، وہ دنیا کی تمام اقوال زری اور تمام حکمت والے لوگوں سے بڑھ کر وہ بات ہے جو یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے نکلتی ہے۔ اگر وہ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہم محبت کو بڑھائیں، محبت کو فروغ دیں۔ اس سے پہلے کہ ہم یسوع مسیح کی ان باتوں کو جانیں، سمجھیں، آئیے یسوع مسیح نے اس حوالہ کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات کہی، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا، پہلے کہا گیا تھا۔ یہ پرانا حکم جو ہے، آئیے ذرا اس کو دیکھیں، کیونکہ یہودی اس بات سے واقف تھے، لیکن آدھی بات سے واقف تھے کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھو۔ یہ انہیں حکم دیا گیا تھا۔ آئیے ذرا چند حوالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں دشمن کے لیے خدا کے کیا خیال تھے۔ پڑوسی کے لیے تو محبت کے ہی خیال تھے، لیکن جو دشمن تھا اس کے لیے کلام کیا احکام جاری کرتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم حوالہ دیکھیں گے استثناء 23واں باب اور اس کی 6 آیت ہم دیکھیں گے۔ استثناء 23واں باب۔ حوالے آج ذرا زیادہ ہیں، ذرا کوشش کیجئے گا جلدی جلدی نکالنے کی۔
6 आयत में लिखा है, तो भी तू अपनी जिंदगी भर कभी उनकी सलामती या सादत का ख्वाह ना होना। ये किनके बारे में कहा जा रहा है? अगर आप 23वें बाब की पहली और दूसरी आयत से शुरू करें तो आपको नजर आएगा, बल्कि मैं तीसरी आयत आपके सामने पढ़ देता हूं। कोई अमूनी या मुआबी खुदा की जमात में दाखिल ना हो, 10वीं पुश्त तक उनकी नस्ल में से कोई खुदा की जमात में कभी आने ना पाए, इसलिए कि जब तुम मिस्र से निकल कर आ रहे थे तो उन्होंने रोटी और पानी लेकर रास्ता में तुम्हारा इस्तकबाल नहीं किया, बल्कि बाऊर के बेटे बलाम को मेसोपोटामिया के फतूर से उजरत पर बुलवाया ताकि वो तुझ पर लानत करे। लेकिन खुदावंद तेरे खुदा ने बलाम की न सुनी, बल्कि खुदावंद तेरे खुदा ने तेरे लिए उस लानत को बरकत से बदल दिया, इसलिए कि खुदावंद तेरे खुदा को तुझसे मोहब्बत थी। तू, अब यहाँ पे 6 आयत है, तू अपनी जिंदगी भर कभी उनकी सलामती या सादत का ख्वाह ना होना। ये सादत जो लफ्ज यहाँ पर आया है, इसका मतलब है नेकी, भलाई, खुश नसीबी। तू अमोनियों और मुआबियों के लिए कभी अपने दिल में अच्छे ख्याल ना लाना, उनकी सादत का ख्वाह ना होना, क्योंकि वो तेरे दुश्मन है, उन्होंने तेरे खिलाफ साजिश की। चाहिए तो यह था कि जब तुम मिस्र में से निकले थे तुम्हारे लिए रोटी और पानी लेकर तुम्हारा इस्तकबाल करते, क्योंकि तुम खुदा की कौम थे, तुम मेरे लोग थे और तुम्हें गुजरने देते। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने जाकर नबी को बुला लिया है? और उस नबी को ये लालच दिया, उजरत पर बुलाया गया। हा? बलाम नबी ने इस्राएलियों पर लानत की, वो खुदा का नबी था, लेकिन उसने लानत की क्योंकि वो उसे बुलाकर लाए थे अमोनी और मुआबी। लेकिन खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। और खुदा ने बनी इस्राएल के करीब से भी लानत को नहीं गुजरने दिया। बोले हालेलुया। आप क्यों डरते हैं मेरे भाई मेरी बहन? आप क्यों डरते हैं? आपके खिलाफ जो मर्जी कोई करता रहे, अगर आप खुदा के हैं, अगर खुदा आपका है, अगर खुदा आपके घर के अंदर बसता है, अगर आप खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, अगर आप खुदा के खौफ में रहते हैं, तो लानत आपके करीब से भी नहीं गुजरेगी। खुदा आपको बचाने की कुदरत रखता है और खुदा ने बनी इस्राएल को बचा लिया, क्योंकि यहाँ पर लानत उनके लिए की जा रही थी। तो जिन्होंने करवाई थी लानत, उनको क्या कहा? उनको कहा इनका कभी अच्छा नहीं जाना, तुमने इनका कभी अच्छा नहीं जाना, कभी इनके लिए अच्छे ख्याल आप नहीं रखने, क्योंकि वो क्या थे? दुश्मन थे। क्या थे जी? दुश्मन थे। और दुश्मन के लिए 10वीं पुश्त तक नफरत खुदा का हुक्म है। 10वीं पुश्त तक हमें नजर आता है कि नफरत, खुदा दुश्मन को गले लगाने के लिए नहीं कह रहा, खुदा कह रहा दुश्मन के साथ दुश्मनी निभाओ। आइए एक और जबरदस्त हवाला देखते हैं खरूज की किताब में, खरूज 21वां बाब, खरूज 21वां बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, लेकिन अगर नुकसान हो जाए तो तू जान के बदले जान ले और आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और हाथ के बदले हाथ, पांव के बदले पांव, जलाने के बदले जलाना, जख्म के बदले जख्म और चोट के बदले चोट। दुश्मन के साथ ऐसा रवैया रखना है, जितना वो तेरा नुकसान करे तो उनका उसका भी उतना नुकसान करना। अगर जिस्मानी तौर पर तेरा नुकसान हो जाए, अगर तेरी आंख चली जाए तो दुश्मन की आंख भी जानी चाहिए, दांत टूट जाए तो उसका भी दांत टूटना चाहिए। अगर जिस्म में कोई कमी आ जाती है, डिसेबिलिटी आ जाती है, तो फिर दुश्मन को भी यही भुगतना पड़ेगा। ये पुराने अहदनामा में खुदा के हुक्म
किसके लिए? दुश्मन के लिए। दुश्मन के बारे में ये खुदा की तरफ से अहकाम जारी हो रहे हैं। आज अगर मेरा और आपका ये रवैया है तो फिर हमें कुछ सोचने की जरूरत है। जल्दी जल्दी फलों को मेरे साथ देखते चले जाइएगा। कोई बात रहेगी? खुदा ने कहा दांत टूटे तो दांत, आंख जाए तो आंख, हाथ जाए तो हाथ, अगर जलाए तुझे तो वो भी जलाया जाए, कोई माफी नहीं। जैसा नुकसान वैसा बदला। लेकिन ये पुराने आहद का वो हुक्म है जिसको यीशु मसीह तब्दील करना चाहता है। इसीलिए तो मत्ती की इंजील 5वें बाब में जो हमने हवाला देखा है, यीशु मसीह ने फरमाया कि अगलों से कहा गया था लेकिन मैं तुमसे कुछ और कह रहा हूं। आइए जरा जो अगलों से बातें की गई थी उनमें से चंद बातें और जल्दी जल्दी देखेंगे। ज़बूर 139 देखिए, ज़बूर 139 और उसकी 21वीं आयत देखिएगा जरा। बड़ी बरकत से भरी हुई बात है। मैंने जब पढ़ी मुझे बड़ा अच्छा लगा। 21वीं आयत में लिखा है, ऐ खुदावंद, क्या मैं तुझसे अदावत रखने वालों से अदावत नहीं रखता? क्या मैं तेरे मुखालफों से बेजार नहीं? मुझे उनसे पूरी अदावत है, मैं उनको अपने दुश्मन समझता हूं। ऐ खुदा, तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान। खुदा का बंदा दाऊद खुदा के साथ बातें कर रहा है कि तेरे साथ, ऐ खुदा, जो तेरे साथ अदावत रखते हैं मैं उनसे अदावत रखता हूं। जो तुझे बुरा समझते हैं मैं उन्हें बुरा समझता हूं। और कह रहा मेरे दिल को जांच ले। हालेलुया। और दाऊद और पुराना आहद बिल्कुल दुरुस्त था उस दौर उन लोगों के लिए। यीशु मसीह की बातें अभी हम नहीं देख रहे, अभी हम जिंदा पाक खुदा की बनी इस्राएल के लिए जो शरीयत थी उसकी बातों को देख रहे हैं। और दाऊद उसका पूरा पूरा अपने ऊपर एतलाक कर रहा है। यहाँ पर हम दाऊद को गलत नहीं कह सकते क्योंकि दाऊद को हुक्म ये मिला था कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले, ये दाऊद को हुक्म मिला था। और दाऊद शरीयत की पूरी पूरी अतायत कर रहा है, पूरा पूरा उस पर अमल कर रहा है। इसलिए वो कह रहा है कि ऐ खुदा, तुझसे दावत रखने वालों से मैं दावत रखता हूं। जो तुझसे बेदार है मैं उनसे बेदार हूं, जो तेरे मुखालिफ है मैं उनका मुखालिफ हूं। और कहा गया था ऐसा ही करना, कहा गया था ऐसा ही करना। लेकिन यीशु मसीह की बातें मेरे और आपके लिए आज एक और तरह से हमारे ज़हन को खोलती हैं। गलतियों के नाम खत देखिए 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत में यूं लिखा है। दोबारा बता देता हूं, गलतियों 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। पड़ोसी किसे क्या कर, पड़ोसी से क्या करना है? मोहब्बत रखनी है। पड़ोसी से क्या करना है? सारे नहीं बोलने, पड़ोसी से क्या करना है? मोहब्बत रखनी है। लेकिन स्टिल शरीयत कहती है दुश्मन से अदावत, पड़ोसी से मोहब्बत, लेकिन दुश्मन से कोई मोहब्बत नहीं, दुश्मन से अदावत ही रखनी है। यीशु मसीह ने बताया कि पड़ोसी है कौन? पड़ोसी कौन है? इसी हुक्म को एक और हवाला में जल्दी से हम देखते हैं। मत्ती 22वां बाब निकालिए जरा। मैंने पहले कहा था आज हवाले थोड़े से ज्यादा हैं, इसलिए जरा स्पीड तेज रखिएगा। मत्ती 22वां बाब देखिएगा। 22वां बाब उसकी 37वीं आयत में लिखा है, उसने उससे कहा, खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है।
پہلا حکم کیا ہے جسے بڑا کہا گیا ہے؟ خدا سے اپنی ساری جان اپنی ساری طاقت سے کیا کرنا ہے؟ محبت رکھنی. اور اس کے برابر کون سا ہے؟ اس جیسا حکم کون سا ہے؟ اس کو کسی اور حکم کے مطابق بولنا ہو تو اسی کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کلام ہمیں فرماتا ہے کہ 37ویں آیت کا اگلا حصہ ہے. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. ہاں جی، انہی پر دو ہے. خدا سے محبت رکھ، پڑوسی سے محبت رکھ، لیکن دشمن نال کوئی پیار نہیں، دشمن کے ساتھ کوئی محبت نہیں. اب یہ پڑوسی، ہمسایہ، اس کی بڑی اہمیت ہے بائبل مقدس میں. کتنے لوگوں کی اپنے پڑوسیوں سے اچھی بنتی ہے؟ اپنے ہمسایہ نال کتنا دی اچھی بنتی ہے بھائی؟ تھوڑی جی بنتی اچھی بنتی سے ایگزام کھڑا ہو. اوکے، کتنے دی نہیں بنتی؟ کتنے لوگوں کی اپنے ہمسایوں سے اچھی نہیں بنتی؟ میرا ذاتی تجربہ، وہ پنجابی کا ایک محاورہ نا ہے نا، چندرا گوانڈ نہ ہوئے اگے کی لائی لگ کھانا نہ ہوئے. یہ دونوں خطرناک ترین باتیں ہیں. میں سچی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو شاید تجربہ نہیں ہے. آپ کے پڑوسی بہت اچھے ہیں. ہمارے پڑوسی بھی، میں 50 سال سے جب سے میں پیدا ہوا ہوں، میرے ماں باپ میرے پیدا ہونے سے پہلے باہر کالونی میں رہتے ہیں، بڑے اچھے دن ہم نے دیکھے. لیکن مجھے پڑوسی لڑاکا ہوئے نا تو تاکہ زندگی عذاب ہو جاتی ہے. پین پرا لڑاکے ہم خیر چل جاتا ہے، ماں باپ چل جاتا ہے. یہ تھوڑا گوانڈ خطرناک ہے نا. تسی کہ نہ نیند ہوتی ہے، نہ چین ہوتا ہے، نہ بندہ کوئی کام کرنے کے قابل رہتا ہے. کیوں؟ ہر وقت ذہن میں ایک ہی بات رہتی ہے، یار کوئی مسئلہ نہ کھو جائے. تو یہ ڈیوٹی دے کے ہوتے پیچھے دے وہ پتہ نہیں یار کی ہو گیا ہے. پڑوسی کی بڑی اہمیت ہے. یسوع مسیح آج ہمیں پڑوسی سے بڑھ کر برکت کو ہمارے اوپر کھولنا چاہتے ہیں. پرانے عہد نامہ میں لکھا ہے پڑوسی کو اپنی مانند محبت کر، اپنے برابر محبت کر. خدا کو اپنی پوری جان، پوری طاقت، پوری روح سے محبت کر. اور اس کی مانند دوسرا حکم، اس کی مانند کون سا ہے؟ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ. تو یہ پڑوسی نال محبت نہیں ہے تو پھر خطرناک ہے. لڑائیاں، جھگڑے، حالات خراب. پڑوسی سے بنا کر رکھیے. خدا کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. لیکن پڑوسی ہے کون؟ آئیے ذرا لوکا کی انجیل میں چلتے ہیں. وہاں پر میں ایک تمثیل خدا یسوع مسیح نے سکھائی ہے. لوکا 10واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے. یہاں پر پھر وہی بحث ہو رہی ہے. اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. اس نے اس سے کہا توریت میں لکھا ہے کہ تو کس طرح پڑھتا ہے. اس نے جواب میں کہا اے خداوند اپنے خدا سے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. اس نے اسے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا.
मगर उसने अपने तय रास्तबाज ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? हाँ जी, ये सवाल बड़ा जबरदस्त है। क्या कभी आपने पूछा खुदा से, मेरा पड़ोसी है कौन? मैं पड़ोसी से मोहब्बत रखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा पड़ोसी है कौन? यीशु मसीह ने पड़ोसी के बारे में सिखाया कि पड़ोसी कहते किसको है, पड़ोसी कौन होता है। Who is your neighbor? आपका पड़ोसी कौन है? यीशु मसीह ने ये बात आलम शरा को सिखाने के लिए एक तमसील बोली, एक तमसील पढ़ी गई। आइए मैं आपके सामने इस तमसील को पढ़ना चाहता हूं। इकतीसवीं आयत से देखेंगे, बल्कि 30वीं आयत से, यीशु ने जवाब में कहा, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था। पहले नंबर पर जो करैक्टर वहां से गुजरा है उसका नाम क्या है जी? काहिन। क्या जी? हेलो, क्या है जी? काहिन। काहिन गुजरा है और काहिन ने देखा क्या है? काहिन ने देखा है कि एक शख्स है जिसके कपड़े उतरे हुए हैं, तकरीबन नंगा है, जख्म उसके बदन पर है और उसके जख्मों से ब्लड निकल रहा है, तकलीफ में है और ऐन मुमकिन है कि वो हाय हाय भी कर रहा हो, अपनी तकलीफ में हाय हाय भी कर रहा हो। और वहां से एक काहिन गुजरा है। जरा स्टोरी को, क्योंकि ये तफसीर है इसलिए मैं स्टोरी कह रहा हूं, ये आलम शरा को समझाने के लिए, जो शरा का आलम है उसको समझाने के लिए यीशु मसीह ने यह तमसील कही है। ठीक है, सो बंदा अधमुआ, तकरीबन अधमुआ, बल्कि आधा मरा हुआ, बेहोश टाइप है, और वहां से एक काहिन गुजरा है और वो और उसे देखकर कतरा कर चला गया, बचकर चला गया है, साइड से होकर। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया, लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैल लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर बटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया था, तेरी दानश में कौन पड़ोसी है? उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। ये पड़ोसी की इससे बेहतर मिसाल कोई नहीं है। अब काहिन और लावी, इन दोनों का क्या स्टेटस है? ये इबादत करने वाले लोग हैं, ये खुदा के घर में जाने वाले लोग हैं, ये लीडर्स हैं। इनको अगर हम लीडर कहें तो बड़ा खूबसूरत है, मजबूत लीडर है। लेकिन इन्होंने जब उस बीमार को देखा, उस तकलीफ में शख्स को देखा, अधबूरे शख्स को देखा, तो शायद उनके दिल में हो कि मैंने तो फलां जगह जाकर इबादत करानी है, मैंने तो फलां जगह जाकर बीमार पर दुआ करनी है, मेरी कलीसिया है ना। लेकिन उसने, यीशु मसीह ने सवाल किया
کہ یہاں پر ایک تیسرا شخص بھی آیا ہے اور وہ سامری ہے، اور یہودی سامریوں سے نفرت کرتے ہیں. یہودی سامریوں کو بے دین سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بت پرست لوگ نے، یہ اچھے نہیں ہیں. لیکن اس سامری نے اس شخص کی مدد کی، اور مدد کیسے کی کہ اس کے زخم دھوئے. لیڈروں نے نہیں دھوئے، انہوں نے دھوئے، اور اسے ہاسپٹل لے کر گیا، پیسے دیے، کیا ہور لگیں گے، میں ہور دواں گا. کیا سامری اس بندے کا رشتہ دار تھا؟ ہلو، کیا سامری اس بندے کا رشتہ دار تھا؟ جاننے والا تھا؟ ملے دار تھا؟ میں اور آپ کیوں صرف اپنوں کی ہی مدد کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ ہماری جھجک اور انا ونڈے شرینیاں انا ونڈے شرینیاں تو آپ اپنے میری جل ہو گئے. میں اپنے جاننے والوں کی مدد صرف کرتا ہوں. انسان سارے کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں. میں صرف اس کا خیال کرتا ہوں جو میرے دائرہ کار میں ہے. یہاں پر ہم پڑوسی کی یہ ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں. پڑوسی کون ہے؟ پڑوسی وہ ہے جو آپ کو نہ جانتے ہوئے آپ کی مدد کرتا ہے. ایسے پڑوسی ڈھونڈیے اور ایسے پڑوسی آپ بن جائیے. ہاللیلویا. آپ کے اندر یہ جذبہ بڑھے کہ آپ نے دوسروں کی مدد کرنی ہے، آپ نے دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے. معیار کیا رکھنا ہے؟ جس کو ضرورت ہے، اے نہیں اللہ منڈے شرینیا. اور وجہ کیا ہوتی ہے پتہ آپ کو؟ وجہ کیا ہے؟ میری عزت بن جائے. اور عزت بندے سے نہیں، عزت خدا سے بننی چاہیے. بولا ہاللیلویا. عزت آسمان کے خدا کے نزدیک بننی چاہیے، کیونکہ آسمان کا خدا دلوں کے بھید ہمیشہ جانتا ہے اور ہمیں برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہمارا خدا ہمیں برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے. انسانوں کی جائیداد انسانوں کی جائیداد کی طرف بڑھ جائے، انسانوں کی فاہم کی طرف بڑھ جائے. انسان آپ کے پیچھے، آپ کے آگے پھرے، آپ کی تعریفیں کرے. خدا کے سامنے لوگوں کو بھی لے کر آئیے اور خود بھی آئیے، کیونکہ آسمان کا خدا اجر دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. سامری نہ جانتے ہوئے مدد کر رہا ہے، اور یسوع نے کہا یہ پڑوسی ہے، یہ ہے پڑوسی. ایسا پڑوسی ہونا چاہیے کہ گوانڈی نال اچھے رابطے رکھو. یاد ہے بھن بھرا کتنے ہوتے سن؟ آٹا مک گیا گوانڈیاں کو لے لیا، تیل مک گیا گوانڈیاں کو لے لیا. اور ساڑھے گھر تھے، ہمارے گھر کے نزدیک ایک بڑی اچھی فیملی تھی، بڑا پیار بتایا میں نے، بڑا اچھا دور دیکھا. وہ ماچس لین بھی آ جاتے تھے، انہوں نے ماچس نہیں سی ہوتی. دن رات شام سویرے جب بھی ہونا اگر ابا جی ڈیڈی ایسا ماچس دیتا تو بڑی خوشی کے ساتھ دینی. کئی دفعہ آدھی رات کو آ جانا. کیا ہے ماچس؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے ہمیں دامے نہ کوئی ہوتا ہے. پڑوسی کے ساتھ ہماری اچھی ہو. یاد رکھیں میں ایک اور آپ کو بات بتانے لگا. بھن بھراواں نے کسی مشکل دے وچ بھن بھراواں نے کسی ٹائم نہ لاؤنا ہے. فون جانا ہے، آنا ہے، پروگرام بننا ہے. تو جے گھر کوئی مسئلہ بن گیا، مثال کے طور پہ کوئی ٹینشن ہو گئی ہے، کوئی بچہ ڈگ پیا ہے، کوئی آگ چھوٹی موٹی لگ گئی ہے، تو مسائل کی کرنا ہے؟ تو وہاں ٹپ کے تہاڈے گھر تہاڈی مدد تہاڈے قریب. اور ہمسایہ کے بارے میں شریعت بڑی بڑی ہے کہ ہمسایہ کے ساتھ محبت کرنی ہے. ہمیں ہمسایہ کے ساتھ محبت کرنی ہے. آئیے اپنے مین حوالہ کی طرف چلتے ہیں. متی کی انجیل
5वां बाब और उसकी 31वीं आयत देखते हैं, जो मेन वाला हमारा है। हाँ? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसके तरफ फेर देना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। क्या ऐसा हो सकता है? क्या हम दुश्मन को, जो हमारे खिलाफ है, जो हमें जलील कर रहा है, हमारे खिलाफ बातों के अंबार लग रहे हैं, झूठे पलंडे बन रहे हैं, और आप कहें खुदा तुझे बरकत दे, हो सकता है? करके देखिए, बड़ा सुकून मिलता है। करके देखिए। यीशु मसीह यही तो सिखा रहा है कि दुश्मन को दुआ देकर, दुश्मन के साथ अच्छा रवैया करके दुश्मन को दोस्त बना लीजिए। हालेलुया। दुश्मन को दोस्त बना लीजिए। 45वीं आयत देखे जरा जल्दी से। यीशु मसीह बड़ी जबरदस्त बात हमें सिखाते हैं, ताकि तुम बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है, और रास्तबाजों और नाराजों दोनों पर नी बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजब, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फक्त अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। हालेलुया। कैसे बनना? कैसे? जैसा हमारा आसमानी बाप कामिल है। और यीशु मसीह हमें क्या सिखा रहा है? अगलों से कहा गया था कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अपने पड़ोसियों से मोहब्बत रखो, दुश्मनों से दावत रखो। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, यीशु की ये बात सुन लीजिए कि दुश्मनों से मोहब्बत रखो और सताने वालों के लिए दुआ करो। हालेलुया। आज आपने अपने आप को खुद मुसीबत में डाला हुआ है। हम पुरानी बात को याद रखें, दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। उनने मेरी बेइज्जती की है, और मैं जितनी देर उदी करना लई मैनू सुकून नहीं होना। उन्हें मेरा नुकसान किया है, जितनी देर मैं एदा नुकसान ना कर लिया, मैं चैन नाल नहीं बहना। यहां तक कि उन्हें मैनू एक गाल कटी है, मैं उन्होंने दो कटाना। ओ भाई, यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु कह रहा है पड़ोसी से मोहब्बत रख, लेकिन मैं ये नई बात तुम्हें बता रहा हूं कि दुश्मन से मोहब्बत रख और सताने वालों के लिए दुआ कर। ये नई बात है, ये बरकत की बात है, ये खुदावंद यीशु का आपके और मेरे लिए नया हुक्म है। इसे अपनी जिंदगी में रख लीजिए। और मेरे और आपके लिए यीशु ने ये हुक्म ही सिर्फ नहीं दिया, करके दिखाया। एक आखिरी वाला मेरे साथ देखिए जरा, रोमियो 5वां बाब और उसकी 7वीं रोमियो 5वां बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत देखिए। हालेलुया। किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। ये बरकत अपने पास रख लीजिए। यीशु मसीह ने
जिस तरह उस सामरी ने उस अगुए डाकुओं से पिटे हुए शख्स की तीमारदारी की ना जानते हुए, ठीक उसी तरह यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जान दे दी। हमारे गुनाहों को नहीं देखा, हमारी गलतियों को नहीं देखा, हमारी खताओं को नहीं देखा, हमारे कसूरों को नहीं देखा। उसने हमें मोहब्बत का दर्श दिया और उसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और आखिरी नमूना जो यीशु मसीह ने हमारे लिए पेश किया, वो सलीब पर अपने दुश्मनों के लिए शफायत दी। हालेलुया। दुश्मनों के लिए शफायत, जिन्होंने हाथों और पांव में कील ठोके थे, जिन्होंने सर पर कांटों का ताज रखा था, जिन्होंने मुंह पर थूका था, जिन्होंने नेज़ा मारा था, उस सब के लिए यीशु मसीह आसमान के बाप के सामने क्या दरखास्त करता है? ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। यीशु के लिए जोरदार ताली बजाइए। यीशु सिर्फ कहता नहीं है, करके दिखाता है। यीशु ने करके दिखाया। तो अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। आइए आज यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले और दुश्मनों को माफ करना। शायद मेरा ख्याल है हम अपने अजीजों को अपना दुश्मन समझते हैं, अपने कंपीटिटर्स को बिजनेस में अपना दुश्मन समझते हैं। आइए आज अपने असल दुश्मन को जाने, और वो इब्लीस है जो हमारे खिलाफ लोगों को भड़काता है और हमारे लिए मुश्किलात पैदा करता है। आइए यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले, क्योंकि यीशु का आज फरमान है कि दुश्मनों को माफ करो, दुश्मनों से मोहब्बत रखो, दुश्मनों के लिए दुआ करो, सताने वालों के लिए दुआ करो। तो याद रखें, अंदर सुकून हो जाएगा कि हमने यीशु की बात मानते हुए अपने मुखालिफों को दुआ दी है। यकीनन आसमान का खुदा हमारे लिए इस अमल को रूहानी सुकून और जिस्मानी नीयत और जिस्मानी बरकत का वसीला बना देगा। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो और अपनी जिंदगियों को यीशु मसीह के हुजूर में दे दें और आज ये कहना शुरू करें,